Assalamu guys, this is your host Kamran Ali Khan and welcome to another episode of Common Success powered by DriveDia. Thank you so much for all the love and support you guys are giving to us. Guys, don't forget to like, share and subscribe on our YouTube channel. Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, LinkedIn and also on Twitter for exciting content. So आज के जो हमारे मेहमान है, you can call her the brain that can create game-changing IoTs for the betterment and convenience of people. She has helped more than 50 plus brands in renewing their marketing scenarios through digital marketing strategy and implementation. She has been involved in multiple projects around the globe and has helped them in renewing their, or you can call it re-strategizing their marketing strategy. She's the Pakistan first ever law blogger that has been featured in Top Businesswomen of Pakistan for more than 4 years. She's the current CEO, the Chief Operating Officer of Piracha Ventures. And Piracha Ventures, what they do is that they bring in an idea of smart investing into game-changing startups. So it's going to be very interesting to see what her journey has been like and what she perceives success actually is. So without any further ado, please welcome the CEO of Piracha Ventures, Ms. Sara Piracha. Thank you so much, Sara, आपका यहाँ पे पॉडकास्ट पे आने का. And before we actually move towards the discussion, थोड़ा सा common success के बारे में आपको बताता चलूँ. It's a platform for entrepreneurs to share their journey of success. And आज आपने जिस तरह से you gave a short description about your journey LinkedIn पे, तो I was मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा वो पढ़ के that you had a vast experience of more than 15 years and you were dealing with different projects internationally and locally. तो मुझे तो आज बहुत मजा आएगा. And I've got a couple of questions for you about the startup community, about entrepreneurship in Pakistan. आप उसको किस तरह से perceive करती हैं? So let's start off with by asking कि talk us about yourself, who's Sara Piracha, and अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ कराएं. अपने बारे में बोलना शायद इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ मैं सिर्फ एक सारा पराठा ही हूँ. बहुत सारे यानी एक जर्नी अगर मैं अपनी बताऊँ तो स्टार्ट होती है फ्रॉम द 15 years of the age, जब obviously we were facing, my family was facing some financial troubles at that time. स्टडी थोड़ी होती हैं, आप जो कुछ बनना चाह रहे होते हो वो नहीं बन पा रहे होते हो, तो फिर वहाँ से स्टार्ट होता है ये कंप्यूटर के साथ एक रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप से टेक्नोलॉजी से आगे बनते बनते कुछ थोड़ा बहुत काम शुरू किया, फिर डिजाइनिंग सीखी, वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर मेजर कोर्सेज किए. देन फिर अपनी यानी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए सारे सब्सिडीज चीजें करते गए. By the time I started my own company that was dealing with the website designing development, and that was all online. At that time there was no option in Pakistan of having such services online. और मतलब ये इस लिहाज से अच्छी चीज़ थी उनके, हम सिर्फ एक गैंग ऑफ गर्ल्स ही मिलके जो है ना उसको चलाने के लिए और आगे भी लड़कियों को ही हायर करने के लिए फोकस कर रहे थे, ताकि लोग अपनी जगह पर रहते हुए रिमोट वर्क कर सकें. एट दैट टाइम मार्केट में उस तक कोई 2006 में ऑप्शन नहीं थी. एंड आई हैव रिसेंटली डन माय मैट्रिकुलेशन, तो उसके बाद अपनी स्टडीज को आगे सपोर्ट करने के लिए एक आइडिया आया, वो आइडिया वाकई में हिट हुआ. आफ्टरवर्ड इन 2013 इसको इंटरनेशनल फेम मिला, और ये मतलब मेरे दिमाग का जो बडिंग आइडिया था जो मेरा ब्रेन चाइल्ड था, तो उसको इंटरनेशनल फेम मिला. वेब समिट जैसी जो है बड़े और जो है ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एलन मस्क भी आके स्पीच कर रहा है और आपको भी उसी स्पेस को शेयर करने का मौका मिले, तो वो एक बहुत बड़ा यानी जिसे कहते हैं माइलस्टोन था लाइफ का. दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर अस. और उस वक्त ये अंदाजा हुआ कि हाँ नहीं, आप टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा सीरियस ले सकते हैं, चल सकते हैं. जो वे लिया उस वक्त वो गलत नहीं था. मीनवाइल whatever I was thinking कि जो है वो डॉक्टर बना जाएगा, वो सब कुछ जो है खत्म हो चुका था. और जो है अपनी मेजर स्टडीज लॉ में की, और उसके साथ ये टेक्नोलॉजी की चीज़ का जब बाहर मिला तो यही पता चला कि नहीं, हम और बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं. जब बाहर जाने का मौका मिलता तो पता चलता है कि पाकिस्तान में आप क्या क्या कुछ और वैरायटी और चेंजेस लेके आ सकते हैं. At that time, still in 2013, startups का scope इतना, the technology startups का scope at
वेब उसमें इतना ज़्यादा नहीं था. पाकिस्तान में बन रहा था, they were starting, everybody was starting and I think struggling with that thing, but मीनवाइल चीज़ें बनती चली गई, बहुत सारे आइडियाज़ बनाए, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे इंटरनेशनल यानी जैसे आप कह सकते हैं मल्टी नेशनल जो है लोगों के साथ काम किया, स्टार्टअप के साथ काम किया, उनके साथ ऑब्वियसली हमें भी ग्रोथ का मौका मिलता है, तो मुझे भी ग्रोथ का मौका मिला, दूसरों को भी ग्रोथ का मौका मिला जिन्होंने हमारे मतलब मेरे दिमाग से उस चीज़ को फ़ायदा उठाने की कोशिश की. तो वो बहुत सारी यानी बहुत लॉन्ग स्टोरी है. आई ट्राई टू सम इट अप. ना कोई नहीं, दैट्स गुड. आई थिंक आपने इस तरह से एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ के लॉ की पढ़ाई की एंड यू हैड दैट मतलब इंस्टिंक्टिव आइडिया कि यार टेक में भी मैं कुछ कर सकती हूँ, आपने उसको कंबाइन किया. एक्चुअली आई वाज स्टोरी में पढ़ रहा था कि यू वर द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी लॉ ब्लॉगर जो कि पिछले 4 साल में भी फीचर हुए हैं. देन यू मेड अ डेटाबेस फॉर द लॉयर मूवमेंट. इसके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे कि ये था क्या इनिशिएटिव. जब ये हमारी जो कंपनी है हमने स्टार्ट की थी एप्पल एपिक से, जब एज ए स्टार्टअप हमने स्टार्ट की थी, तो उसके फ़ौरन बाद ही 2007 एंड 2008 में लॉयर्स मूवमेंट हो रही होती है. तो उस वक्त बहुत सारा यानी एक चीज़ होती है, बंदे के अपनी इंटरेस्ट भी होता है. वी वर ऑल्सो लाइक स्टूडेंट एक्शन कमेटी का भी पार्ट रही मैं उसी वजह से. तो वो एक स्टार्ट हुआ एक ब्लॉग के साथ. चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हमने सपोर्ट करने के लिए मैंने ब्लॉग बनाया, और वो ब्लॉग का आइडिया ऐसा हिट किया. वो एक फेसबुक का ग्रुप से स्टार्ट हुआ, तो फेसबुक के ग्रुप पे सिर्फ 40 लोग होते थे, और वो ऐसा स्टार्ट हुआ कि अब 4 लाख के करीब जो है वो ऑडियंस पहुंच गई. और मतलब वो 2 साल के अंदर एक टर्नओवर आया. राइटिंग लोगों ने पसंद करने शुरू की, ब्लॉगिंग की. तो उसमें एक बहुत बड़ा डाटा रिकॉर्ड था, लाइक वीडियो क्लिप, फोटोज एंड एवरीथिंग. वो उस वक्त यानी तकरीबन कोई 8 साल वो ऑनलाइन अवेलेबल रहा. यूएन में कोलैबोरेशन छपी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में इसी चीज को, लाइक वट एवर वी डिजाइन, वट एवर इवन इन फैक्ट वी डिजाइन द पोस्टर्स एंड एक्सेट्रा. So that was a very hard time at that time, but we were doing a work which was like an opportunity. जिसमें कहते हैं ना कि जो लोग हर्डल को अपनी अपॉर्चुनिटी देखें और बना लें, तो वही मेजर चीज होती है, वही आप सक्सेस कर सकते हैं या जैसे कहते हैं कि ग्रोथ कर सकते हैं. वो शायद एक वो भी एक टर्निंग पॉइंट था, और वो भी एक ग्रोथ का एक अलग तरीके का. लेकिन वो दैट वाज कंप्लीटली विद माय पर्सनल लाइफ. I haven't never gained anything professionally with that thing, except that the idea or the startup, if we take it as a startup or an idea, it really you know जिसे कहना चाहिए फ्रूटफुल एक लिहाज से रहा हमारे लिए. मेरे लिए पर्टिकुलरली मेरे लाइफ में एक कैरियर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. उसकी वजह से मुझे इंटरनेशनली पढ़ने का भी मौका मिला. मेरा एडमिशन हो जाना और एक डिप्लोमा वहाँ से ग्रेजुएशन का करना, तो वो उसका पार्ट बन गया. नहीं उसका एक वो चीज़ जो जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया समझाया. तो मैं ये भी एक बात बाद में भी कोट करना चाह रही थी. तो ये है कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं होता कि आप जो चीज़ आइडिया लेके आए वो आपको यू नो किसी सूरत जो है वो पैसे ही देगा, तो आप उसे समझेंगे वो एक सक्सेसफुल आइडिया है. हो सकता है वो आपको कहीं ऐसी जगह पे कंपनसेट कर दे कि जहाँ पे आपकी यानी मेहनत जाया कभी भी नहीं जाती. मेहनत कहीं ना कहीं आपको कंपनसेट कर ही देती है, तो वो आपका हार्डवर्क काम आ जाए. उस लिहाज से कैटेगरी नहीं दैट्स मतलब ग्रेट. मतलब आपने एक ब्लॉग से स्टार्ट किया है, मतलब यू डिडंट हैव दैट मतलब काइंड ऑफ कि यार इससे पैसे कमाने. यू थॉट ऑफ इट कि यार मेरा शौक है, मेरा पैशन है, एंड आई शुड ट्राई इट आउट. तो दैट्स रियली गुड. उसके बाद आई लुक्ड एट योर मतलब यू वर सेइंग कि आपने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी आपने डील किया. यू बीन अ मेंटोर, ग्रोथ हैकर, टेक स्ट्रेटजिस्ट. इसके बारे में मुझे बताएं कि व्हाट वर the experiences like, I mean dealing with those international and local projects. मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें. How was the experience like and how did you get those projects? प्रोजेक्ट तो यही मैंने जैसा बताया आपको कि जब आप मिलते हैं लोगों से एक यानी एक स्टेप बाय स्टेप बनता है बनने के लिए. जब आप मेरे लिए स्टेप ये बना था कि मैंने गॉट अ चांस टू गो डबलिन. तो वहाँ पे एक पूरा यानी 10,000 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ही लोग पूरी दुनिया से आए हुए थे. तो वहाँ कनेक्शन बिल्ड होते हैं. आप कॉन्फ्रेंस मैं हमेशा ये कहती हूँ कॉन्फ्रेंसेस में शायद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो कनेक्शन से. आपको जी अगर आप इनफैक्ट आपका अगर स्टार्टअप रजिस्टर्ड भी है यू टू हैव अ डेमो डे, तब भी आपको 90% चांसेस है कि आपके सिर्फ कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं. यू हैव अ वेरी यू नो अ लॉन्ग वे
लेफ्ट फॉर दिस थिंग कि आपका कोई स्टार्टअप प्रॉस्पर कर सके। लेकिन जो कनेक्शन होते हैं वो आप कैसे उसे लेके जाना चाह रहे हैं, आप कैसे उसको उससे डील कर रहे हैं, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इस चीज़ के लिए समझना बहुत, और फिर मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप उससे बहुत ज़्यादा अगर आप उनकी बातों से लर्न कर लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, बजाय से कि उनके पीछे भागें। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो उन लोगों के बहुत जरूरी है, मतलब जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि आजकल के टाइम पे अगर आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखें तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप खुद वो एक चीज ट्राई करें। ऑब्वियसली एक वो होता है कि माइंडसेट होता है नहीं यार हमने नई चीज ट्राई करनी है, बट आई थिंक इसका अगर काउंटर पार्ट देखा जाए तो अगर आप लोगों के एक्सपीरियंसेस भी देखें तो उससे भी आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये चीज आपके लिए सही थी या नहीं थी। ऑब्वियसली नेटवर्किंग आजकल के टाइम पे स्पेशली जहाँ पे स्टार्टअप्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, और वो नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे, लोगों से मिलना है, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाना है, नाम बनाना है, तो आई थिंक नेटवर्किंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। तो इन टर्म्स ऑफ योर Yes, I want to and this note के प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो होती है ना बहुत अलग होती है। हम लोग पाकिस्तान में समझ के ये सोचते हैं कि if somebody has given us shared the number with us और हम उससे बात कर लेंगे, तो नहीं, वहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है अबाउट दिस Zoom एंड Slack, आपको उनसे रिमोटली ऐसे कम्युनिकेट करना होता है कि आप अपनी बात उन तक बता सकें, पहुंचा सकें कि जिसका वो जवाब दें। वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका वो जवाब दे, वो जवाब से आगे बात बनती है। और फिर उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि बहुत सारे और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन रिमोटली जो वर्क होते हैं उनसे मिल सकते हैं, जहाँ आप अपने मुल्क में रहते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत एक ओवरऑल स्कोप है, एक स्पेस है पूरी की पूरी, जिसको आप अगर बड़े कैनवस पे देखें तो आप समझ में आता है कि हाँ ये चीज अगर वहाँ ना होती तो आज जो है वो फला चीज वहाँ पे ना बैठी हुई होती है, वो चीज अब तक ना पहुँच सकती। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। इन टर्म्स ऑफ योर वेंचर, मतलब पिराचा वेंचर, आई वाज लुकिंग एट द वेबसाइट, आपने उसमें ये लिखा होता है कि दे वर फोकसिंग ऑन दोस वेंचर्स जिनका 99.9% एक सक्सेस रेशियो है। तो वो 9.1% कोई है ऐसे स्टार्टअप्स आपके पास जो कि आगे जाके दे आर इम्प्लीमेंटेड, या इस तरह का क्या कॉन्सेप्ट क्या था मतलब अबाउट पिराचा वेंचर्स, अगर इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। पिराचा वेंचर्स इवेंचुअली हेल्प आउट करती है उन इन्वेस्टर्स को और उन स्टार्टअप्स को जो यानी आपस में वही मैंने कहा ना बीच की कम्युनिकेशन का एक वे होता है। थर्ड पार्टी मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक बार एक्सेल करते हैं, थर्ड पार्टी बीच में होती है। थर्ड पार्टी का रोल ये होता है कि जिस तरह पिराचा वेंचर्स है ये एक थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी का रोल ये है कि वो आपके साथ, ये कोई बंदा आता है और अपना स्टार्टअप आप हमें दिखाता है, तो ये हमसे बताता है अपनी पूरी चीजें, बिजनेस प्लान दैट इज ऑल लीगली शेयर्ड विद द एनडीए। वो पिराचा वेंचर्स अपना भी एनडीए एग्जीक्यूट करती है, और वो जब आपकी पूरी चीज समझती है, देखती है और आपको ये फैसिलिटी देती है कि अच्छा ये एक तरीके का एक रिमोट डेमो होता है हमारे पास कि हम ये चीज समझ रहे हैं, अब हम आपको बताते हैं व्हाट्स योर वैल्यूएशन और क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं, सिमिलर लाइक इफ यू गो विद गो फॉर चेकअप टू अ डॉक्टर, वो आपको बताते हैं इवन टू अ लॉयर कि आपका कितना रेट है, आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये इसमें कोई हार्ड यानी फीलिंग वाली बात नहीं होती। मे बी इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मच इंटरेस्टेड इन्वेस्टर इन योर काइंड ऑफ स्टार्टअप, तो हम ऑब्वियसली तौर पर उसको पूरा लीगली बता देते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं और ये आपकी हमारी तरफ से वैल्यूएशन हो सकती है कि हम आपको इतना करवा सकें। फिर इन्वेस्टर से हम बात करते हैं, इफ दे लाइक इट अप देन वी डायरेक्टली लिंक देम विद दैट। So it's like we are like a third party. We just arrange everything and see कि अगर कुछ चीज अच्छी है तो हम किसी के पास इंटरेस्ट है और इन्वेस्टमेंट है तो वो उससे कनेक्ट कर दिया जाए। अगर उनकी बात बन जाती है और वो आगे अपने आप को कैसे डेमो करते हैं और आगे चीज चली जाती है तो वो उनके ऊपर जो सारा कुछ है वो डिपेंड कर रहा होता है उस चीज के अंदर। So the idea was eventually a remote, accelerator sort of thing. कि हम उनको मेंटोर भी कर दें, उनकी गलतियां भी बता दें, उनकी चीज भी बता दें और उसको वैसा बना के अगर कोई और उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको दिखा दें और फिर उनको एक तरीके के एक सपोर्ट मिल जाए, एक बैकबोन मिल जाए ताकि वो अपनी चीज आगे रन कर। नहीं बिल्कुल, आई थिंक इन शॉर्ट इसको ये कहना चाहिए कि एक छोटा सा बच्चा आया और आप उसको कर करा के उसको बड़ा करके फिर आप सामने दिखा रहे हैं कि अच्छा ये एक है
बड़ा आदमी, आप उससे अब मैं आप रात उला के साफ सुथरा करके हम उसको सामने लेके आ रहे हैं कि ये चीजें बिल्कुल अच्छा है इसमें कि यू आर बेसिकली एक्टिंग एज अ मिडिल पार्टी बिटवीन द स्टार्टअप्स एंड द इन्वेस्टर्स। तो इसमें मतलब कभी ऐसा होता है कि मतलब आपको अगर कोई स्टार्टअप ऐसे लेट्स सपोज अगर पसंद आ गया तो आप भी इन्वेस्ट मतलब उसमें करते हैं, या इट्स जस्ट दैट यू लिंकिंग अप विद इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप उसमें, या कोई ऐसा आपके पास देखो आइडिया है? हमारे पास फंड्स जो होते हैं ना वो हम डायरेक्ट किसी भी इन्वेस्टर से नहीं लेते, यानी अगर कोई हमें जिस तरह बहुत सारे यहाँ पे हैं ऐसे इंक्यूबेटर्स अवेलेबल हैं जो कि डायरेक्ट यूएन से यूएस से ग्रांट ले लेते हैं। तो हम इस चीज की हेडेक अपने ऊपर नहीं लेते, बस वी हैव अ वेरी स्मॉल टीम which is running this thing. We have just an experience to understand that how an investment would be thinking, rather internationally or locally. तो हम उस सर्विस को हम अपने दिमाग को और जैसे कहते हैं ना जंग रगने देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो चीज किसी को बेनिफिशियल हो रही है तो वो चीज ले ले। हमारी परसेंटेज अगर मीनवाइल हमारी परसेंटेज कोई भी नहीं है, ना तो स्टार्टअप के साथ और ना ही जो है इन्वेस्टर्स के साथ हमारी कोई परसेंटेज नहीं होती इस चीज के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में शायद लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते विद अ थिंग। हम सिर्फ एक जैसे आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये फॉर सपोर्टिंग दिस स्टार्टअप इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, we have very less, those people who contact us, हम उनको खुद ही अपनी तरफ से जज करते हैं, चेक करते हैं। अगर हम उनको कुछ हेल्प आउट कर पा रहे होते हैं तो हम उनको पहले वो हेल्प आउट करते हैं और मीनवाइल हम इन्वेस्टर से कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि अगर किसी के पास कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल हो कि वो फला फला कैटेगरी के अंदर जो जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया वो होता है ऑलरेडी, वो अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आए उधर इन्वेस्ट करें और बाद में फिर यानी हम एक सिर्फ एक खास टाइम तक के लिए उनके साथ होते हैं और उसके बाद वो डायरेक्ट खुद आपस में कनेक्ट होते हैं और हमारा उसके बाद उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो हम सिर्फ इतना फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपने आप को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दें इफ दे आर हैविंग और लाइकिंग इन सम कंडीशंस लाइक जिनको जिस कैटेगरी में हम उनको थोड़ा सा मेंटोर भी कर देते हैं, थोड़ा सा एडवाइस भी कर देते हैं। If they are having some lack of the technology facilities, तो उधर भी हम उनको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करते हैं, but we are not having or directly be getting all the grants, तो उस लिहाज से हमारा थोड़ा सा फीचर अलग होगा। फीचर अलग होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इन टर्म्स ऑफ मतलब हमारी यहाँ की जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की एंटरप्रेन्योरशिप की, कि पिछले 1-2 साल में आपने भी देखा होगा कि टेक सेक्टर काफी बूम किया है और पिछले 6 महीने में देखा जाए कोविड के बाद भी टिल सितंबर ई कॉमर्स सेक्टर बहुत फ्लरिश किया है एंड स्टार्टअप्स इन जनरल पिछले 1-2 साल में बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, फंडिंग्स मिल रही हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स से मिल रही है, यहाँ पे भी लोग इन्वेस्ट करें। तो क्या देखा आपने पूरे इस 1-2 साल में, व्हाट आर द थिंग्स के स्टार्टअप्स ने इम्प्रूव किए है या कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को लेके चले पिछले 1-2 सालों में, अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी को किस तरह से परसीव कर रहे हैं पाकिस्तान में अभी इसमें? सच्ची बात बताऊं, जिस चीज से बहुत ज्यादा आजकल डर लगता है वो ये कि स्टार्टअप जब जिस तरह अगर मैं कुछ बड़े नाम लेना नहीं चाहती, पर एक दो बड़े शॉपिंग या ई कॉमर्स आइडियाज हैं जी, लेकिन मैं खुद भी नहीं लेना चाहती वैसे, एक तो बड़े ई कॉमर्स आइडियाज हैं, आप यू कैन नेम इट यू नो अबाउट दोस। eventually in fact even I was a very frequent customer of those e-commerce जब वो early यानी इन उसमें थे इन्वेस्टमेंट के सेक्टर के अंदर, और काफी अच्छे थे, काफी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, काफी अच्छी डिलीवरी और तमाम चीजें। लेकिन अब जब उनको इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है, जब वो स्टेज 3 तक या स्टेज 2 तक सीड फंडिंग से निकल चुके होते हैं और हायर कैटेगरी में चले जाते हैं, तब उनकी डिलीवरी, उनकी जो पूरी फैसिलिटीज हैं वो बहुत लैक कर जाती हैं। अगर आप ऑन ग्राउंड बात करें तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो बहुत ज्यादा हैं चल। तो एक चीज मैंने एक कोट पढ़ा था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट काफी मशहूर जो है वो हस्ती है कि आप जो है ना मर्सिडीज को सुजुकी की प्राइस में बेच सकते हैं, हर सूरत बेच सकते हैं। असल आर्ट ये कि आप सुजुकी को मर्सिडीज की प्राइस ऐसे ही समझ गया। that is an art. So it's not a thing if you are having an e-commerce idea or technology idea and your sale is better or you are having a static, वो किसी का भी चल जाएगा। आई गेस वो किसी का भी चल जाता है अगर आपकी थोड़ी सी रेपो हो गई, आप इतने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इतने मार्केटिंग स्टंट्स यूज कर रहे हैं, तो वो चल जाता है। मेन चीज ये होती है कि उसमें बहुत सारे लोग वहां पे आके कलेक्ट करें। अदरवाइज अगर आप
इनिशियली तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं। और मैंने यही कहा ना, जो 2013 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो अब अगर आप 7 साल बाद देखें तो बहुत ज़्यादा आपको एक वैरायटी ऑफ ब्रेन मिल रहा है। और वो ही बहुत यानी बहुत क्रिएटिविटी है उसके अंदर, बहुत सारे आइडियाज आपको लगते हैं कि जैसे आपने इंटरनेशनली सुने हुए हैं, पर उनमें कोई ऐसी पिंच और ऐसी चीज वो डाल के अपनी जो रेसिपी बना के लेके आते हैं ना, वो काफी क्रिएटिव होती है, टैलेंटेड होती है। लेकिन आई होप कि वो वाले स्टार्टअप भी जब अपनी सीड फंडिंग कर लेंगे और फिर जब वो किसी भी जगह से जहाँ से भी उनको बेनिफिशियल होगा वो, और फिर उसके बाद वो आगे पिक करेंगे और जब वो स्टेजेस के ऊपर फंडिंग के जाना शुरू करेंगे तो वो ऐसा आउटकम नहीं देंगे। लेकिन यू नेवर से अबाउट दैट थिंग। बट द थिंग इज दिस के जो अभी स्टेबल हो चुके हैं वो स्टेबल मतलब अपनी सर्विसेज में वैसे नहीं है जिस तरह उनको होना चाहिए, जिस तरह वो पहले थे। और जो अभी आ रहे हैं वो भी बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत इट्स वर्थ टू हैव ऑल ऑफ दोस। बट हमारे यहाँ शायद इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो शायद प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर वो इंटरनेशनली होते तो शायद बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट गेन करते और प्रॉस्पर कर सकते। एक और सवाल, मतलब ऑब्वियसली आप एक वेंचर चला रही हैं, so you normally face a question like this कि what are the common mistakes entrepreneurs make? मतलब अगर मेरे पास एक आइडिया है एंड मैं चाह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में आगे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में करूँ, तो entrepreneurs की क्या कॉमन मिस्टेक्स आपने देखी हुई है while having those startups over there? तो what are the mistakes that they make मतलब when they are starting off their idea? बिकॉज ये सवाल काफी लोग पूछते हैं कि यार ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें बच के रहना चाहिए इससे, या हम वो ना करें तो बेहतर है। सबसे पहली मिस्टेक और वो मुझे लगता है कि शायद मैंने जब बंदा जो 2013 में बिल्कुल छोटा होता है छोटे वाली कैटेगरी में हमने भी वॉच की है। और वो पहली मिस्टेक होती है एनडीए। आई केम अक्रॉस के जितने लोगों से बात करो या जो स्टार्टअप आ रहे हैं बेचारों को ये पता नहीं होता व्हाट इज द एनडीए, सिवाय उनके जिन्होंने शायद एमबीए या मास्टर्स किया हुआ होता है, उनके अलावा किसी बंदे को ये पता नहीं होता व्हाट इज द एनडीए। और उनको ये, और जिन्होंने मास्टर्स किया होता है उन्हें ये नहीं पता होता कि टेक्नोलॉजी में भी एनडीए होता है। तो एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आपका होना चाहिए। आपने आइडिया एक सोच लिया ना, आप पहले बैठो अपना एक टेम्पलेट निकालो ऑनलाइन और अपनी एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बनाओ। उससे पहले आप अपने साय को भी ना बताओ कि आपने क्या सोच लिया है। ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, ये हर बंदा करता है। ये 2-3 जगह पे जो है मैंने भी की हुई है, बहुत सारे लोगों ने की हुई होती है, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू हो रही है। ये एक काफी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि लोगों को इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है कि जब आप एक आइडिया में अभी बैठे बैठे, जिस तरह अगर रैंडम बात में आपको एक आइडिया बोल देती हूँ अभी बैठे बैठे, मुझे क्या गारंटी है कि आप वो आइडिया आगे नहीं बताओगे किसी को। Exactly. आपने वो आपका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, आपकी कोई नेगेटिव थॉट नहीं है अबाउट दिस थिंग, बट आप आगे जाके 4 लोगों को बता रहे हो, वो 4-10 को बता रहे हैं और सारे 44 लोगों तक वो आइडिया पहुंच चुका है। और उनमें से कोई एक अगर ईवल है, उसका माइंडसेट ऐसा है कि उसे पता है कि वो उसको गेन कर सकता है, और आपका आइडिया गया। अब आपके पास कोई स्कोप नहीं है, पर्टिकुलरली एक खास स्पेस और एक खास कंट्री के अंदर आपका स्कोप 0 हो जाता है एक लिहाज से। नॉट लाइक दिस कि अगर आप अगर बाइकिया है और आप करीम है और करीम भी बाइक चला रही है, तो वो दोनों चल रहे हैं ना, दोनों के पास एक जो है स्कोप है, पर उनके पास इन्वेस्टमेंट पहले से आ चुकी थी। ये एक पॉइंट होता है। उनके पास इन्वेस्टमेंट पहले से है, वो उस चीज को रन कर रहे हैं, देन वो चीज चला सकते हैं, कुछ भी चला लें, वो कुछ भी बेच लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं उस चीज के अंदर। असल चीज ये कि आपका आइडिया बना ही नहीं है, आपके पास बिजनेस प्लान नहीं है, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास, यू डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद एवरी सिंगल थिंग। और जब इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिन पे कभी जो है ना किसी एक्सपीरियंस इंसान को भी रोना आ जाता है। नहीं, आपने वैसे नॉर्मली कौन कौन से ऐसे सवाल पूछे जिसमें मतलब आपको ऐसा फील हो, अच्छा यार ये तो एक ऐसा सवाल है जिसको पता होना चाहिए लेकिन नॉर्मली नहीं पता होता। आई थिंक मैंने भी काफी लोगों को देखा यहाँ पे कि आइडिया चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, उनकी जब बात आती है फाइनेंशियल्स पे तो वो बहुत लैग करते हैं। मतलब अब मेरे पास एक आइडिया है और मैं कह रहा हूँ यार ये 2 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, तो कहा यह जाता है कि बेशक अगर आइडिया ज्यादा से भी स्टार्ट हो, कॉस्टिंग अपनी डिफाइन कर लो कि यार कॉस्ट किस किस चीजों पे आपने लगाई है। वो जिसे कहा यह जाता है, हमने जो पढ़ा हुआ था कि आप एक 3 साल की एक
इनकम स्टेटमेंट फोरकास्टेड बना के बता दो, अच्छा यार इन 3 साल में मेरी क्या परफॉर्मेंसेस रहेंगी। आई थिंक वो लोगों को भी शायद नहीं पता कि फाइनेंशियली किस तरह से डील करना चाहिए एक स्टार्टअप को, एक कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बजटिंग आ जाती है इसके अंदर, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने कभी ये फेस किया था स्टार्टअप्स में, क्योंकि फाइनेंशियल्स नहीं ठीक अ, सवाल जो है ना, यही मैं बात करी, मेन जो है लैक होती है कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी नहीं होती, नहीं जिसमें होती। सबसे पहले एनडीए है। हम्म, उसको अगर आप टाइप कर दें तो आप जब आइडिया बनाते हैं ना, तो ये नहीं होता है कि अगर आपने देख लिया कि इंडिया में एक .com चल रही है, मंत्रा .com चल रही है, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग दिस, हम्म, या फ्लिपकार्ट चल रही है, आपने देख लिया वो आइडिया, एंड यू हैव अ कैपेबिलिटी और माइंड टू कॉपी दैट आइडिया brilliantly in some region, rather in Middle East or Pakistan or China, whatever. yeah, आपके पास है कि कैपेबिलिटी, आप टेक्नोलॉजी उसको फुलफिल कर सकते हैं। अब द थिंग इज दिस कि वो कहीं पे मौजूद है, ये इससे किसी को कोई गर्ज नहीं होता। गर्ज yeah, ये होता है कि आप उसे डॉक्यूमेंटाइज कैसे करके लेके आए। exactly, आप अगर किसी चीज को डॉक्यूमेंट, यही प्राचा वेंचर्स करती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को डॉक्यूमेंटाइज अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, yeah, तो इसका मतलब यह है कि आप वहीं पे फ्लड कर चुके हो। आपका आइडिया लोग सुन तो लेंगे और शायद बना भी लेंगे, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे। आप थक जाओगे, साल 2 साल आप अपने आप को पीटते रहोगे उसी चीज में, पर आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फाइनेंशियल आपने किधर जो है इन्वेस्ट करना है, रिटर्न आपका आरओआई क्या होने वाला है, yeah, ये सब प्रिडिक्शन होती है। बाय द वे फाइनेंस का जो आपका बहुत बड़ा सेक्टर है, दैट इज ऑल प्रिडिक्टेड। yeah, That is not what we are, we can't guarantee that thing to any investor, or any startup can't guarantee this thing। और जो इन्वेस्टर आ भी जाता है उसे पता होता है कि ये एक बिजनेस है, और बिजनेस में आप फॉल भी कर जाते हो और आप सक्सीड भी कर जाते हो, दोनों आपके सूरत हाल आपके सामने होती हैं ऑलरेडी। तो उनको वही बात जो आपने कही ना, उनको इस बात से परेशानी नहीं होती कि आप 2 लाख ले रहे हो, 20 लाख ले रहे हो, 20 करोड़ ले रहे हो। yeah, उन्हें इस बात से परेशानी नहीं होती। उन्हें yeah, परेशानी होती है, आप ये पता है कि एग्जैक्टली आपको पता भी है आप क्या करने वाले, exactly, ऐसे ही, आपको पता भी है आप किस तरह हर्ट करोगे। yeah, ऐसे ही तो बिल्कुल, वो एक काफी चीज है। ये इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो कभी भी ये नहीं होती कामयाब कि आप बात कर रहे हैं 2 लाख की या 2 हजार की या 20 हजार की, वो शायद हम दोस्तों में मिलकर शायद इकट्ठा कर लें, एक ग्रुप ऑफ, जिसे कहते हैं ना हम लोग कमेटियां डालते हैं, औरतें पाकिस्तान में बहुत yeah, ज्यादा सेविंग कर लेती हैं, तो वो भी कर लेती हैं, वो भी कर सकती हैं, वो सब कुछ हो सकता है। असल बात होती है कि हम उस बिजनेसमैन को जिसके पास एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट हो, हम स्कोप लेके चलें एक बड़े स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की तरह, रादर इट्स लाइक करीम, इट्स लाइक whatever you name it, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, उबर ले लें, कुछ भी ले लें, कोई भी एक और स्टार्टअप ले लें जो फूड के हैं, किसी भी चीज में। वो अगर आपका लेवल जा रहा है, तो आपको ये याद रखना चाहिए वहाँ पे कितने जीरो आ गए, वहाँ पे कितने जीरो डॉलर्स में आए। डॉलर्स है, वो जब कन्वर्ट होते हैं जी, और वो जब कन्वर्ट होते हैं, जब वो पाकिस्तान में कितने और जीरो बन जाएंगे। बहुत और बड़ी, आपने रीजन कौन से पिक किए हैं, जिस तरह करीम, अगर आप कहें कि पाकिस्तानी ब्रेन चाइल्ड है करीम, एक वो बंदा जो पाकिस्तानी है, पर वो यूएई में उसने अपना लॉन्च क्यों पहले किया, yeah, उसने अपना रीजन टारगेट किया, उसे पता था कि वहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं, हम्म, तो और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट उन्हें मिल गई। तो ये बहुत सारे ना पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जो आपको देखने होते हैं, अगर वो नहीं है, इन लाइन नहीं है, तो फिर तो गया। नहीं बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात की आपने। मैं आई वाज लुकिंग एट योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल, आपका एक ब्रॉडकास्ट मीडिया भी है बाय द नेम ऑफ ई फ्लक्स। वो एग्जैक्टली क्या है, व्हाट डज इट डू, मतलब स्टार्टअप्स की क्या कहते हैं, इंटरव्यूज वगैरह देते हैं कि व्हाट इज इट लाइक, मतलब ई फ्लक्स किस तरह से ऑपरेट करता प्लस प्लस एक बेसिकली टॉक शो का आइडिया लेके आया, एक रेडियो, ऑनलाइन रेडियो का कॉन्सेप्ट लेके आया। It started in 2016, and we, initially we got the attraction of the audience, और हमें अमिताभ बच्चन जैसे कि है? इन उनका क्वेश्चन करने का मौका मिल गया, उनका आंसर भी मिल गया, एक Yeah, चीज, एक बहुत मतलब एक बहुत बड़ा उसको स्कोप मिला। yeah, द रीजन वाई वाज ऑब्वियसली रीजन में हम्म, ऐसा, रीजन क्या इंटरनेशनली ऐसा कोई आइडिया नहीं था। आजकल ये आइडिया, इस वक्त हम उसके ऐप के ऊपर और दूसरे फैसिलिटीज के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहे हैं, और इस वजह से वो जरा मतलब जिसे कहते हैं ऑफ साइड हुआ है, और बहुत जल्द वो दोबारा से रिलॉन्च होगा।
क्योंकि हम जब देखा कि ऑब्वियसली हमें अब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इस कोविड के अंदर, तो हमने उस पर कॉन्सेंट्रेशन शुरू कर दिया है with a serious stuff. But it was like something which is not not an ordinary or general podcast. It's like a talk show. It's like something on radio. You need to be online at that time, and the host which we gather up. So small team है, पर वही मैंने कहा ना, स्मॉल टीम इन्वेस्टमेंट, इसके पास अभी तक कोई इवेंचुअली जनरेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है एक्सपर्ट के पास, और वो शायद इस वजह से भी नहीं है क्योंकि जो मैं हूँ, आई एम को फाउंडर ऑफ इट एंड इवन द फाउंडर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड until we get that particular hype of that thing. We need to present to only those investors जो इनफैक्ट ही वांटेड टू इन्वेस्ट ओनली दोज इन्वेस्टर्स जो उस चीज को यानी उसको वर्थ दे सकते हैं। हम जो सोच रहे हैं वो क्या उस ख्याल को तक मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, सिर्फ वो उसका एक यानी चीज है। वो हम किसी को भी यानी इट्स समथिंग लाइक दिस कि हम किसी को भी देना नहीं चाहते उस वक्त तक जब तक हमें ये ना पता चले कि हमने अगर लाइक अगर हमने मार्स पे ही जाना है तो हमने मार्स में जाने के लाइक हमें पास फ्यूल है भी कि नहीं। तो उस चीज के अंदर वो चीज कलेक्ट करिए, बट द आइडिया इज सिमिलर लाइक दिस कि वो फ्लॉप इस तरह से नहीं है, उनके वो आइडिया चल तो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। वी आर वही मैंने कहा ना, हम अपने आप से भी 2,20,00,000 करीब किसी ना किसी अपना पेट काट के कर लेते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी कर लेते हैं। आपको ये सोचना था कि आपको इंटरनेशनल जब जाना है तो आपको कितना पैसा चाहिए, क्या उसमें इन्वेस्टर्स आप इकट्ठे कर सकते हैं। जब हमने अभी राउंड का सोचा था उसका तो कोविड आ गया और हमारे जो 2 राउंड होने थे इंटरनेशनली उसके फंडिंग के, हम वहाँ जाके कॉन्फ्रेंसेस अटेंड नहीं कर सके और हम वहाँ पे कोलैप्स कर गए। इट वाज अ हार्ड लक फॉर अस, और मे बी बहुत सारे लोगों के लिए और भी रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून यू विल सी समथिंग वेरी गुड फ्रॉम दैट साइड ऑफ पाकिस्तान। लाइक इसमें भी एक कोई कैटेगरी है जो एक्सेल कर रही है। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक वी हैव ऑल द बेस्ट फॉर दैट E-Flux थिंग। लेकिन आपने जिस तरह से पूरी जर्नी मतलब आपने माशाल्लाह से एक्सप्लेन की इन टर्म्स ऑफ कि आपका टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी लगाव था, लॉ भी आपने पढ़ी हुई थी, यू केम अप विद एन आइडिया कि अच्छा पहले एक लॉयर्स के लिए कुछ करें, ब्लॉग्स बनाएं, फिर देन यू हैव दैट लॉ पढ़ी नहीं थी, नहीं लॉ पढ़ी टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी तो उसमें फिर देन यू हैड द ब्रेन टू क्रिएट दैट IoT कॉन्सेप्ट और हेल्प आउट करें, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज लोगों को बताएं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। फिर आचा वेंचर्स आपने स्टार्ट किया, यू ब्रॉट इन स्टार्टअप्स, यू कनेक्टेड देम टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स, उनको हेल्प आउट कर रहे थे। एंड टू सम इट अप, मतलब पूरी जिस तरह आपने अपनी जर्नी एक्सप्लेन की है, एक आखिरी सवाल जो आई थिंक मैं सबसे पूछता हूँ, एंड आई होप अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हो, वो सवाल ये होता है कि इन योर ओपिनियन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। एंड आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं होता, ये हर बंदे की अपनी एक राय होती है कि पिछले कई अरसे से जो उसने एक मुकाम हासिल किया उसको 1 या 2 लाइनों में एक्सप्लेन करे, अच्छा यार ये मेरे लिए सक्सेस है। तो आपके लिए सक्सेस है क्या? मेरे लिहाज से, या मैं अगर उस चीज को सोचूं तो सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सक्सेस है क्या। मेरे लिहाज से सक्सेस होती है कि आप अपना एक नाम बना लें, एक आपकी वैल्यू हो, नॉट ऑफ द स्टार्टअप, द पर्सन हु इज टेकिंग दैट थिंग ओवर, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। और अगर उसकी वैल्यूएशन है, उसके दिमाग की वैल्यूएशन है, तो वो दिमाग कहीं से भी चल सकता है, वो पैसे कहीं से भी अरेंज कर सकता है। दैट इज नॉट द पॉइंट। एवरीबडी थिंक्स अबाउट द मनी, मनी इज द पॉइंट, नो डाउट, एंड देयर इज नो डाउट इन दिस थिंग कि आप मनी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। पर जो चीज होती है वो होता है एक दिमाग। आज आपके पास एक आइडिया है और अगर वो फ्लॉप कर गया तो आप आगे कैसे काम करोगे अगर आपके पास दिमाग नहीं है? तो पैसे भी आगे सब कुछ होता है, दिमाग होना चाहिए। वो दिमाग की वैल्यूएशन होती है, वो दिमाग ही वर्थ होता है। मेरे ख्याल से सक्सेस उस वक्त है कि जिस दिन आप चलते चलते उस स्टेप पे, उस स्टेज पे लाइफ के पहुंच जाते हैं, जब आपको लगता है, आपको नहीं दूसरों को लगता है कि नहीं यार ये जो शख्सियत है ना, ये मेरे फलां चीज के काम आ सकती है, या मेरे जो भी आप कंपनी के पास, जिसके पास ऑनलाइन जिस तरह ओपन अप तो हर चीज के CV आपकी अपनी प्रेजेंटेशन ही होती है, एक तरीके से लिंक्डइन हो या कुछ भी हो,
तो उस वक्त जब आपको कोई अगर कोई चीज, कोई कंपनी, कोई भी शख्स आपको कांटेक्ट करे और वो ये कहे कि ये चीज आप हमारी इसमें हेल्प आउट कर सकते हो, वी बिलीव कि आपने जो वो चीज की ना, हमें वैसी ही चीज चाहिए. दैट इज द टर्म ऑफ सक्सेस इन माय इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. बिल्कुल, आई थिंक तब आपको पता चलता है कि आपने सक्सेस हासिल कर लिया. ओके, आई हैव डन I've done समथिंग. something. Exactly. वही है, मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि money is an important aspect of it. लेकिन वही बात होती है, if you have that mindset कि to take that idea to मतलब newer heights, तो पैसा तो फिर eventually आ ही जाएगा. मतलब उसकी value addition जिसे कहते हैं ना, कि आप अपने अंदर इतनी value add कर लें कि लोग आपको जाने. ये ना कहें यार इस बंदे के पास पैसा बहुत है, या वो लोग ये कहेंगे यार इसने अपने आप को कुछ किया है, स्किल सेट इसने अपने बढ़ाए हैं जिसकी वजह से आज इस मुकाम पे किया. तो थैंक यू सो मच सारा हमारे पॉडकास्ट पे आने का, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. और आपने पूरा जिस तरह से अपनी जर्नी एक्सप्लेन की है, मतलब I am hoping, I'm planning to actually come to Karachi by the end of December, and I would definitely love to visit your office. और मेरा भी एक स्टार्टअप है, आपने शायद देखा ही होगा, ड्राइव दिया, और हम भी क्या कहते हैं कुछ इसी तरह का ही कुछ एक इनिशिएटिव हमने लिया हुआ है. So I would love to have a conversation with you on that as well, उसमें some other time. But any last few words before we end the podcast session to our young entrepreneurs? कुछ एक दो चीजें अगर आप उनको एडवाइस करना चाहें. कोई चीज एडवाइस करना चाहूँ तो वो यही होगी जो मैंने अभी पूरी डिस्कशन में की है कि आपने आपको प्रिपेयर करें. अपने दिमाग को एक इसको एक इस लिहाज से ले लेते हैं कि अपने दिमाग को आप जो है ना पढ़ाएं, उस चीज में उसे एक कैपेबिलिटी दें. गूगल सर्च से आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं, ऐसे वीडियोस हैं, ऑडियो बुक्स. अगर आप ऑडिबल ले लें, पाकिस्तान में आप चल रहा है, आप जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डालते हैं और आपको पूरे महीने में एक बुक आपको फ्री सुनने को मिलती है. आपने चूज करना है उस बुक को और आपने उस चीज को पढ़ना है, सुनना है. वो जो एक बुक है ना, वो कभी भी जाया नहीं जाएगी आपकी लाइफ के अंदर. ये आई हैव सीन दिस थिंग इन माय लाइफ. आई हैव noticed this thing, what is changing in myself, which is what I have gained, and that is only the growth of your brain. If you are able to learn rather not to waste. I am very fond of watching TV. I am very fond of watching movies. But still आपको वो 1 घंटे, तो वो 6 घंटे की बुक होती है, हार्डली 4 घंटे की, 6 घंटे की. और पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं से आप वो आधा घंटा अरेंज कर लेते हैं कि उसे सुन लें, और वो 1 महीने में बड़े आराम से खत्म हो जाती है. और वो कहीं ना आपको, आप अगर अपने बिजनेस में ले रहे हैं, अपनी मार्केटिंग में ले रहे हैं, स्ट्रैटेजी में ले रहे हैं, बिजनेस राइटिंग में ले रहे हैं, किसी भी चीज में आप वो बुक पिक कर सकते हैं. और इन द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड आउट द थिंग दैट यू हैव ग्रोन, यू हैव फाउंड सम न्यू वेज व्हिच यू वर नॉट नोन टू. वो चीज कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शायद मुझ में भी वो चीज का लैक था, और दूसरों में भी होगा और होता है. और बहुत सारे लोगों को देखने में मुझे लगता है कि है कि उनको शायद वो अगर वो चीज सीख लेते या उधर वो अपना एक लाइफ में बनाए, आधा 1 घंटा आपने अपने जॉब के साथ साथ, हर बंदे को काम करना पड़ता है, जॉब के साथ साथ अपनी बाकी एक्टिविटीज के साथ साथ आपने अपने जो आपने एक कॉन्सेप्ट बना के लेके आया ना, उसके लिए कुछ लर्न करना है. उसके लिए, सिर्फ उसके लिए. वो आपका स्टार्टअप आपका बेबी है, वो स्टार्टअप आपका फ्रेंड है. आपने उसके लिए वो काम करना है, उस पर वो आधा घंटा पर डे या 1 घंटा पर डे आपने उधर इन्वेस्ट करना है किसी ना किसी चीज. देन आई थिंक देन यू कैन डू इट, देन यू कैन डू एवरीथिंग, और वो जो आपका ड्रीम है वो जरूर फुलफिल हो जाएगा. नहीं, वेरी वेल सेड. आई थिंक थैंक यू सो मच. मतलब आपने जो एक इंसाइट दिया हमारे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान में नॉर्मली यही कहा जाता है कि स्टार्टअप्स नॉर्मली फेल भी इस तरह करते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लैक ऑफ कमिटमेंट होती है वो नहीं होती. जैसा अभी आपने भी बात की कि यू नीड टू गेट दैट 1 आवर फ्रॉम योर डेली रूटीन, जिसमें आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने स्टार्टअप को दे रहे हैं. सो आई थिंक वो चीज़ें क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टअप के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो चीज़ अपना रहे हैं, और इंशाल्लाह क्या कहते हैं वी होप फॉर द बेस्ट. बाकी थैंक यू वंस अगेन फॉर allowing me to have a discussion with you on our podcast session of Common Success. And guys, the link to Karachi Ventures is going to be in the description below. Please do check it out. It's a काम बहुत अच्छा है. I'm going to give a LinkedIn
लिंक ऑफ सारा प्राचर, गो चेक इट आउट। जिस तरह का काम उन्होंने किया हुआ है, जिस तरह के उनकी एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी आप जरूर देखें। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू follow Common Success on our YouTube channel, and don't forget to follow it anywhere social media पे हम हर जगह हैं, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter पे, do check it out and thank you once again, and till then Sarah, Allah Hafiz.